السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں سے پڑھنا ہے، تتقون تک ہم نے کیا تھا، یہ پڑھیں۔ چل کون پڑھے گا؟ ریحان پہلے پڑھیں گے، رضوان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ ٹھیک ہے، پڑھیں۔ ثم حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي۔ ترتیب، ٹھیک ہے، تراخی دو لفظ ہیں۔ ترتیب کیا ہوتی ہے؟ یعنی پہلے یہ آیا، جو پہلے نمبر پہ آیا وہ پہلے، جو دوسرے نمبر پہ آیا دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ جو آیا تیسرے نمبر۔ سما یہی کرتا ہے، وہ ایسا نہیں کرتا، وہ ترتیب نہیں دیتا پہلے کون آیا، وہ سب کا بتا دیتا ہے، یہ آیا وہ آیا وہ آیا، ٹھیک ہے نا؟ جی، وہ لگا کے وہ صرف بتا دیتا ہے کہ یہ بھی آیا تو وہ بھی آیا، تو ترتیب نہیں بتاتا پہلے کون آیا، ٹھیک ہے؟ جی، تراخی کیا ہوتی ہے؟ تراخی ہوتا ہے یعنی ایک آیا اور اس کے بعد اتنے ٹائم کے بعد دوسرا آیا، فوراً نہیں آیا۔ یعنی ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تو اس نے تم کو پیدا کیا تو ایک دم تو موت نہیں دی نا، نہیں، ٹائم گزرا، پوری لائف گزاری آپ نے، ٹھیک ہے؟ آپ کے بچے ہوئے، آپ بڑھاپے ہوئے، بوڑھے ہوئے، پھر آپ فوت ہوئے، ہے نا؟ جی، تو نارملی تو ایسا ہی ہوتا ہے، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تو ہر موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فوراً تو نہیں اٹھا لیں گے نا، جب قیامت والے دن اٹھائیں گے نا، تو ٹائم، تراخی کا مطلب بیچ میں ڈیلے ہوتا ہے، ٹائم گزرتا ہے کافی سارا۔ تو جب بھی سما آئے گا دو فائدے دے گا۔ یفیدو کا مطلب ہے فائدہ دیتا ہے تو حرف عطف ہی، وہ بھی سما بھی، اور کون کون سے ہیں؟ ایک فا بھی ہے نا، جی، ام بھی، او بھی، سب حرف عطف ہے نا، 9 ہوتے ہیں، 9 10 ہوتے ہیں، تو ہر ایک الگ الگ کام ہے۔ تو فا میں کیا ہوتا ہے؟ فا جب آپ کا حرف عطف آتا ہے تو کوئی کام ایک ہوا پھر فوراً دوسرا ہو گیا، ہے نا، فوراً، جی، امیڈیٹلی۔ ثم میں کیا ہوتا ہے؟ تاخیر ہوتی ہے، ترتیب ہوتی ہے، فا میں بھی ترتیب ہوتی ہے، جی، فا میں بھی کیا ہوتی ہے؟ ترتیب ہوتی ہے، یعنی پہلے یہ آیا فوراً پھر یہ آ گیا، ٹھیک ہے، دوسرا آ گیا، ترتیب ہوتی ہے اور فوراً کا معنی دیتا ہے امیڈیٹلی کا۔ ثم جو ہوتا ہے وہ تراخی امیڈیٹلی کا اپوزٹ ہے، سمجھ آ گئی بات؟ جی۔ چلے آگے، تولئی تم کیا ہے؟ ثم تولیتم، تولى فعل ماض والضمير في محل رفع فاعل۔ تولا کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، لاسٹ لیٹر پہ زبر آ رہی ہے نا، جی، اور ویسے بھی یہ والی ضمیریں جب فاعل بنتی ہیں، ہے نا، جی، تو پھر وہ پھر ماضی ہی ہوتا ہے، ضمیر سے پہلے سکون آ رہا ہے نا، تولیتم۔ تو اب یہ کیا ہے آپ کا؟ فعل ماضی ہے، تو ماضی کا پہلا سیغہ کیا ہوگا؟ یہ والا کون سا سیغہ ہے؟ کون سے نمبر کا ہے؟ تولیتم، تولا یا تولو، ٹھیک ہے، تولو یا تولو جو بھی ہے، پھر تولیت وہ کیا ہوگا آگے؟ تا سکون والا سیغہ آئے گا نا، تولیت، ہے نا، جی، پھر تولیتا، تولنا، تولتم کہاں پر آتا ہے؟ تولتا، تولتم، تولتم 9 نمبر کا سیغہ ہے، ٹھیک ہے، پھر تولتی،
और फिर आगे इस तरीके से आपके आते हैं, तवल तुमा, तवल तुन्ना, तवल तू, तवल ना। तो ये पूरी माजी की गिरदान बन गया। तो ये आपका 9 नंबर का सीगा है जी अंतम ज़मीर वाला। जो ता जबर वाला होता है ना वो 7 नंबर का होता है, अंता वाला होता है ता जबर। फिर ये आपका 8वां और 9वां, ये आपका 9वां सीगा है। तो ये आपका तवल्ला से बना हुआ है। तवल्ला कौन सा बाप बनता है ये? तवल्ला। हम मजीद माजी में कितने लेटर हैं तवल्ला में? आ, वो लाम या तो रूट वर्ड है ना। जी ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा लेटर कितने हैं? ता भी एक्स्ट्रा है, और लाम भी एक हम एक्स्ट्रा है। लाम भी एक एक्स्ट्रा है क्योंकि डबल हो रहा है ना। जी तवल्ला बन। तफ़ाअल बाप तफा, बाप तफाला या तफालू, तवल्ला या तवल्ला यू। जी ठीक है, तो आपका ये तवल्ला या तवल्ला यू, और फिर मुखातिब में जाके ये ततवल्ला बन जाता है, ततवल्ला यू बन जाता है, ततवल्ला यू। तो उसमें फिर एक ता को गिरा देते हैं। बहरहाल ये वाला माजी क्या है, ठीक है, तवल्ला या। जैसे कोई मिसाल दें, और कोई आसान सी मिसाल दें। इसमें तो रूट वर्ड दो दो आ रहे हैं ना, हर फेलत दो दो आ रहे हैं इसमें। जी हम्म, तअल्लम तअल्लमा या तअल्लमु, ठीक है। तअल्लुम ये उसी बाब से है, तअल्लुम से। इसमें लेटर भी डबल हो रहा है और ता भी आ रही है, जबकि अल्लामा में सिर्फ लेटर डबल होता है, ता नहीं आती माजी के पहले सीगे में। ठीक है, उसमें अल्लामा में ता नहीं आती माजी में, तअल्लमा में ता आती है। तो ये बात तअल्लमा से बना हुआ है। आगे क्या है? वो जमीर फी माली रफिन फाइल, कौन सी जमीर है? फाइल बन हम रही है। अंतुम हाँ, इसमें अंतुम है ना। जी इसमें देखें तो कौन सी है? पहले सीगे में हुआ सुबह होती है, इसमें आके तबल्लई तुम, अन, तुम जमीर फाइल बन रही है। ठीक है, तुम जमीर या अंतुम। मिन बादी क्या है? من بعد من حرف جر بعد ظرف बादू नहीं مجرور होगा, बादी होगा ना। मिन बादी, बादी। بعدي ظرف مجرور بمن بمن बी मिन, मिन बादी है ना, तो मिन ही होगा ना। जी बी मिन। तो ये आपका जर्फ है और मजरूर है। मजरूर क्यों हो रहा है? मिन की वजह से। जर्फ पे तो हमेशा क्या आती है? जबर आती है ना, जी ऐसा ही है ना। जी जर्फ जो होता है उस पर तीनों एराब आ जाते हैं, जबर भी आता है, पेश भी आता है, और जेर भी आता है। तो जबर तो आता ही है, बादा होता है, कबला होता है ना। मिन जी आ जाए तो बादी भी हो जाता है, कबली भी हो जाता है। लेकिन जब पेश आती है तो वो क्यों आती है? मिन बादू कब आता है? जब मिन बादू आता है तो वो क्यों आता है? आनी तो जेर चाहिए ना मिन के बाद, है ना। लेकिन बादू लिखा होता है, मिन कबलू लिखा होता है, तो वो क्यों आता है? हम हम्म, मिन बादू कबलू आपने पढ़ा ना कुरान में। जी बिकॉज उसके बाद हम्म, पीछे मिन आ रहा होता है, उसको जेर आनी चाहिए, लेकिन नहीं आ रही होती, पेश आ रही होती है। फिर मुदाफ बना होता मुदाफ तो बनता ही है ना। मुजाफ तो हमेशा ही होता है, बादा होगा या बादी होगा या बादू होगा, मुजाफ तो हर हाल में होगा ना। है जी यहाँ भी मुजाफ ही है ना। और ये मुजाफिल है इसका। तो यहाँ पे मिन बादी जाले का आ रहा है। लेकिन कभी आप देखते हैं मिन बादू लिखा होता है, तो वो बादू क्यों लिखा होता है? हम हाँ हाँ, बोले सोचे रेहान।
उसके आगे ये मुज़ाफ इलैह फिर नहीं लिखा होता। जी अगर मुज़ाफ इलैह लिखा हो तो फिर जेर आती है, जी ठीक है। अगर मुज़ाफ इलैह ना लिखा हो तो फिर पेश आती है। जी कितनी बार बताया मैंने ये, कब पक्का होगा? अब यहाँ देखिए मुज़ाफ इलैह आ गया ना, ये लिखा हुआ है मुज़ाफ इलैह, तो जेर आ जी रही है, ठीक है। अगर मिन आ रहा हो और पेश आ रही हो तो फिर क्या वजह हो सकती है? वो वजह ये है कि उसके आगे ये नहीं लिखा होता, मुज़ाफ इलैह नहीं लिखा होता। तो ये दम्मा ये बता रहा है कि यहाँ पर इसके आगे मुज़ाफ इलैह नहीं है, खुद ही सोच लो। जी हम्म आगे क्या है, पढ़े। ذلك اسم إشارة في محل جر مضاف إليه والجملة معطوفة على جملة اذكر वल जुमला तू मातूफतन अला जुमलातिन, जुमलातिन होगा ना, जी अला जुमलातिन उज़कुरू, है ना। तो ये वाला जुमला जो जी है सुमा से, सुमा हर्फ अतफ था ना, तो ये जो वाला जो जुमला है मिन जी बादी जालिक, ये वाला क्या बन रहा है? पिछले जुमले पे अतफ हो रहा है, क्योंकि ये हर्फ जी अतफ है ना। लेकिन काम फौरन नहीं हुआ, काम में तरतीब भी है। पहले क्या हुआ, और ये तरतीब है, पहले एक काम हुआ फिर तरतीब से दूसरा काम हुआ। ये नहीं कि आगे पीछे पहले ये हुआ तो फिर वो हुआ, ऐसा नहीं है। पहले वो काम हुआ जी फिर ये काम हुआ। और तराखी का मतलब क्या है कि फौरन नहीं हो गया, ताखीर से हुआ है। अब इसके पीछे क्या चीज है? सुम्मा क्या है? हरफ अतफ है ना। तो मिन बादी जालिका, फिर तुम फिर गए, यानी अल्लाह ताला ने क्या किया उनके ऊपर, ये वाली आयत है ना, अल्लाह ताला ने उनसे अहद लिया और उनके ऊपर कैसे कैसे अहद लिया, उनको डरा के उनके सर के ऊपर कोई तूर को ला के, और उनको बोला कि खुजू मा आतैनकुम बिकुव्वतिन वज़कुरू मा फीही लअल्लकुम तत्तकून। ये आयत, ये हुक्म हुआ और उन्होंने मान भी लिया। जी उस वक्त जब सर मुसीबत सर पे आती है, जी मुसीबत का पहाड़ सर पे आता है, तो इंसान मान लेता है ना, जी नमाज़ें भी पढ़ने लग जाता है, सब कुछ करने लग जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, जब मुसीबत खत्म हो जाती है तो इंसान क्या करता है? थोड़े दिन असर रहता है, फिर सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिक। घर में कोई फौत हो जाए या रिश्तेदारों में कोई फौत हो जाए तो फिर क्या होता है? थोड़े दिन असर रहता है ना, जी जनाजा भी पढ़ते हैं, कब्रिस्तान भी जाते हैं, डेड बॉडी दफनाते भी हैं, कब्र पे मिट्टी भी डालते हैं, तो थोड़ा अरसा क्या रहता है? असर रहता है। फिर जी ऐसा हम नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद जाते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लेकिन थोड़े अरसे के बाद क्या होता है? फौरन तो नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है, फिर हम फिर जाते हैं। तो इन्होंने भी क्या किया, अल्लाह ताला से डर के मारे अहद ले लिया, अल्लाह ताला ने पहाड़ को हटा दिया, इन्होंने मंजूर कर लिया अहद को। और फिर उसके बाद थोड़े अरसे के बाद क्या हुआ, सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिका, इसके बाद उन्होंने उसको फिर गए। तवल्ला का मतलब होता है मुंह फेर लेना, जी मुंह मोड़ लेना, इराज बरतना। फलौला फضल, अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? फलौला फضलुल्लाहि अलैकुम। फलौ क्या बन रहा है यहाँ पे? फलो ये पूरा जुमला उज़कुरू के ऊपर अतफ पड़ रहा था ना, उज़कुरू, यहाँ पे उज़कुरू था ना, जी ये वाला उज़कुरू, इसके ऊपर अतफ पड़ रहा था, ठीक है, सुमा की वजह से। इस उज़कुरू के ऊपर ये वाले जुमले का अतफ पड़ रहा था। कुछ दिन तो उन्होंने नसीहत हासिल की, थोड़ा वो डरे, याद किया, उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो फिर गया। अब यहाँ फलाउल्ला से पढ़े, फा क्या है? فالفاء استئنافية لولا حرف شرط غير جازم
गैर जाज़िम, गैर ही नहीं, गैर जाज़िम, हर्फ शर्तिन गैर जाज़िम। अब ये क्या है, लौला हर्फ शर्त है, ठीक है, जैसे बाकी इन होता है ना, बहुत सारे हर्फ शर्त होते हैं ना, तो लौला भी क्या है, ये भी शर्त के लिए, एक ही वर्ड है ये। अच्छा ये क्या है फिर, शर्त बनेगी ना आगे वाला जुमला, है ना, जी। तो क्या है, ये शर्त हो गया, हर्फ शर्त हो गया, गैर जाज़िम। आगे क्या है, फज़लुल्लाहि मुब्तदाउन मरफ़ूअन बिद्दम्मति व लफ्ज़ुल जलालति मुज़ाफ़ुन इलैहि वल पूरा ख़बरु। पूरे का पूरा मुब्तदा बनेगा, ठीक है। जी। वल खबरू क्या है, मुब्तदा तो बना लिया हमने, खबर क्या है, आमीन। हम्म, खबर माजूफ है वजूबन। मौजूदन। जी। हाँ, तो खबर को क्या करते हैं, माजूफ कर देते हैं, लौला की खबर को लाजमी तौर पे, कंपल्सरी, और वो खबर क्या है, मौजूदुन। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फलौला मौजूदुन फदलुल्लाही। ये क्या है, ये मौजूदुन क्या बन रहा है, खबर है ना। जी। अच्छा इसको मुब्तदा बनाया था, तो ये मौजूदुन यहाँ आएगा ना, ये खबर, ये मुब्तदा बनाया ना हमने, है ना, ये मुब्तदा है ना, तो मौजूदन इधर नहीं आएगा, मौजूदन आगे आएगा, मुब्तदा के बाद आएगा। तो लौला हरफ शर्त है, ये मुब्तदा है, और ये मौजूदन क्या है, उसकी खबर है। अब ये दोनों मिलके क्या बन गए, शर्त बन गए ना, जी। ये हरफ शर्त है, तो ये शर्त बन जाएगा ना पूरा। जी। फलौला हरफ शर्त, और ये फजलुल्लाह की मुब्तदा, और ये मौजूद उन खबर जो कि बीच में सबमिट की गई है, जरूरत नहीं थी, तो ये सब मिल के क्या बन गया, पूरा शर्त बन गया, ठीक है। अब जवाब शर्त पे क्या आता है, लव ला के जवाब शर्त पे क्या आता है, लाम आता है। अगर ये पॉजिटिव जुमला हो, नेगेटिव पे लाम नहीं आएगा, पॉजिटिव पे आएगा, जी। ठीक है। तो लव ला के जवाब के ऊपर क्या आता है, ये जवाब शर्त बन रहा है, इसके ऊपर लाम आता है। तो ये कुंतुम क्या है, पढ़े, लाम, लाम कौन सा है, लाम वाक़ियतुन फी जवाबि लौला। हाँ, लौला के जवाब के ऊपर वाक़या हो रहा है, ठीक है। जवाब क्या है, लाम तो वो है ना, उसके ऊपर आ रहा है ना, तो जवाब शर्त क्या है, जवाब शर्त ये पूरा जुमला है ना, जी। पढ़ो, काना क्या है, अम, काना फ़िअलुन माज़िन नाक़िसुन वद्दमीरु इस्मुहा फ़ी महल्लि रफ़्इन। ये इसका इसम हो गया काना का। जी। काना का इसम क्या होता है, मरफू होता है ना। जी। तो खबर आगे क्या है, ये समूहा हो गया। अब ये मिनल खासिरीन क्या है, मिनल खासिरीन जारुन मजरूरun फ़ी महल्लि नस्बिन ख़बरु काना वल जुमलतु लकुंतुम ला महल्ला लहा जवाबु लौला। जवाबुल लौला, जवाबुल लौला भी कह सकते हैं, और जवाब शर्त भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हरफ शर्त था, ये फेले शर्त था, और ये जवाब शर्त, जवाबुल लौला के ऊपर लाम आता है, ठीक है। जवाब शर्त जो होती है ना लौला की, उसके ऊपर लाम आता है, अगर जुमला पॉजिटिव हो, नेगेटिव पे नहीं आता। ये हमने सब रूल पढ़े हुए हैं, आपको पक्के करनी है, इसलिए मैं इस किताब के ऊपर लेके आई हुई हूँ आपको, ताकि बार बार आए हम रिपीट करें। तो लौला जो होता है ये हरफ शर्त होता है, दोनों एक ही वर्ड है, लौला। जी। इसके बाद शर्त होती है, जो कि पॉजिटिव जुमला हो तो उसके जवाब के ऊपर फिर क्या आता है, जवाब शर्त पे लाम आता है। जी।
आगे क्या है पढ़े, नंबर 65 आयत रेहान. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. So अब वो ولقد, वो क्या है, so واو الواو استئنافية. वो इस्तनाफिया क्यों आ रही है, यहाँ भी वो इस्तनाफिया आई थी ना, जी तो वो इस्तनाफिया आ जाए तो फिर क्या होता है, यहाँ पे आया था ना ये फा इस्तनाफिया आया था, ये भी हरफ अतफ है, वो हो या फा हो इस्तनाफिया है तो क्या होता है, ये वाला जुमला तो हरफ अतफ के जरिए पिछले जुमले पे चला गया था ना, यहाँ पे है ना, जी अतफ हो गया था. तो यहाँ फा इस्तनाफिया क्यों आई है, क्योंकि जो आगे बात आ रही है वो क्या है, उस पीछे से कनेक्टेड नहीं है, वो एक नई बात है. जी अगर यहाँ पे हम फा लिखते ना आतिफा, तो फिर ये जुमला भी क्या होता, उसके पीछे वाले जुमले पे ऐड हो जाता. जी तो जब इस्तनाफिया कह दें तो फिर आगे चलता है वो, ठीक है, नई बात होती है, फिर वो ऐड अप नहीं कर पाते हम. लेकिन अगर फा आतिफा हो जाती तो ऐड करना पड़ता. अब यहाँ पे भी ये वो जो आ रही है आतिफा नहीं आ रही, इस्तनाफिया आ रही है, तो ऐड अप नहीं होगा पीछे, ठीक है, आगे नई बात आ रही है. चलें. वाह. اللام في جواب قسم مقدر اور قد حرف تحقیق. मुकद्दरिन नहीं होगा, देखो. مقدر. हाँ एक सेकंड. वो क्या इस्तनाफिया है, अलवाबु इस्तनाफिया तुन, अल्लामु फी जवाबी कसम, फी जवाबी, जवाबी कसमी, जवाबी कसमिन कर लें, ठीक है, इसके नीचे तो एक ही जेर लगाएंगे क्योंकि ये मुदाफ बन रहा है. जी कसमिन मुकद्दरिन, مقدر. मुकद्दरिन क्योंकि ये कसम और मुकद्दर, मुकद्दर कसम ये सिफ्त बन रही है. फी जवाबी कसमिन मुकद्दरिन, या फी जवाबी कसमी मुकद्दरिन, नहीं, कसमिन मुकद्दरिन होगा, ठीक है, क्योंकि अलिफ लाम नहीं आ रहा ना, तो कसमी नहीं कर सकते. ये तो मुजाफ बन रहा था ना, इसलिए इसके ऊपर एक जेर आई थी, है जी ना, मुजाफ पे तनवीन नहीं आ सकती, लेकिन इसके ऊपर अगर अलिफ लाम आता तब एक जेर आती है, अभी दो ही जेर आएंगे. कसमिन मुकद्दरिन, और कद, आगे क्या है, قد حرف تحقیق. हम्म. حرف تحقیق. तो लाम क्या है, लाम क्या है, वो कह रहे हैं वो तो इस्तनाफिया लाम फी जवाबी कसमिन मुकद्दरिन. तो जब भी आपका लकद आए ना, तो उसमें एक फेल होता है उक्सिमु. उक्सिमु का क्या मतलब होता है, उक्सिमु वो मुकद्दर है, जी तो कद क्या बन रहा है, अल्लामु फी जवाबी कसमिन मुकद्दरिन, ये जो कसम मुकद्दर है ना ये, ठीक है, इसका जवाब है, ये कसम के जवाब के ऊपर लाम आ रहा है, जैसे यहाँ पर भी शर्त के जवाब पे लाम आया था ना, ये हरफ शर्त था ना, तो इसके जवाब पे लाम आया था, लौला के जवाब पे जब शर्त वाला हरफ शर्त के जवाब पे जब आया था तो लाम आया था. तो यहाँ पर जो आ रहा है वो कसम के जवाब पे आ रहा है लाम. अल्लामु फी जवाबी कसमिन मुकद्दरिन, ये जो लाम आ रहा है कद पे, ये पीछे एक कसम मुकद्दर है उक्सिमु, ठीक है, और या फिर इसको हम वल्लाही भी कह सकते हैं पीछे, लेकिन वल्लाही भी कह सकते हैं. और यानी वल्लाही कहाँ आएगा, फिर ये वो नहीं आएगा, ठीक है, फिर वल्लाही आएगा. तो वल्लाही लकद अलिम तुम, लेकिन उक्सिमु कहने ज्यादा सही है. जब भी आप लकद देखें तो ये लाम जो होता है ये जवाब कसम का होता है, और कसम क्या होती है, माजूफ होती है उक्सिमु, ठीक है. जी अच्छा, फिर कद क्या है, वो हरफु ताकीद है, वो तो आपको पता ही है ना, इंडीड का मीनिंग देता है, ऐसा ही है ना. जी तो आगे अलिम तुम क्या है, जी जी
فعل ماض بمعني عرف بمعني عرف فاعل. یہ علیمہ ہے نا، تو یہ کیا ہوگا؟ عریفہ ہوگا نا. ومانی جی عریفہ، علیمہ کس کے معنی میں عریفہ. ہے؟ عریفہ کے معنی میں. یعنی دونوں کا معنی ایک ہی ہے، جی علیمہ کا اور عریفہ کا ایک ہی معنی ہے. عریفہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہی جی ہوتا ہے جو علیمہ کا ہوتا ہے. اگر آپ کو علیمہ کا آتا ہے تو عریفہ کا بھی آتا ہے، عریفہ کا جی آتا ہے تو علیمہ کا بھی آتا ہے. آگے کیا ہے؟ یہ فعل ماضن ہے علیمہ، اور بمانی عریفہ ہے. وفاعلہ کیا ہے؟ فائل کیا ہے اس کا؟ علم تم فائل کیا ہے؟ تم ضمیر. ہاں ہاں ریحان، تم ضمیر. فعل کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے نا. فعل ماضی میں کتنے صیغے ہوتے ہیں ٹوٹل؟ جب گردان کرتے ہیں کتنے ہوتے ہیں؟ فعل فعل فعلو فعلت فعلتا فعلنا، ہے نا؟ کتنے ہوتے ہیں ٹوٹل فعلنا تک؟ آپ کی انگلیوں پہ کتنے ہیں وہ نشان؟ آپ کی 5 انگلیوں پہ کتنے نشان ہیں؟ فنگر ٹپس. رضوان آپ بتائیں کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ 14 ہوتے ہیں نا ٹوٹل، ہے نا؟ ماضی میں 14 ہوتے ہیں، مضارع میں 14 ہوتے ہیں، امر میں 6 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی تو ماضی میں 14 ہے تو اس میں سے فرسٹ اور فورتھ نکال دو. فرسٹ اور فورتھ میں کیا ہوتا ہے؟ فائل کدھر ہوتا ہے؟ فرسٹ اینڈ فور میں فائل کدھر ہوتا ہے؟ باہر. باہر ہوتا ہے، اور اندر بھی ہو سکتا ہے. جی اندر باہر ہو گیا نا، ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ دونوں ہو گیا نا. کبھی باہر ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا باہر، پھر اندر والا بنا لیتے ہیں. پیچھے کتنے صیغے رہ گئے ان دو کو نکال کے؟ 12. ہاں 12 رہ گئے. اب 12 میں کیا ہوتا ہے؟ یہ 12 میں سے ہے یا فرسٹ 4 میں سے؟ بتائیں. 12 میں سے. 12 میں سے. تو 12 میں کیا ہوتا ہے؟ فائل ساتھ ہی لگا ہوتا ہے. تو پھر جی اتنی دیر کیوں لگتی ہے بتانے میں؟ یہ 12 جو ہوتے ہیں ان کا فائل ساتھ ہی لگا ہوا ہے. آپ نے دیکھنا ہے یہ فرسٹ اینڈ 4 میں سے آ رہا ہے یا 12 میں سے آ رہا ہے. اگر یہ 12 میں سے آ رہا ہے تو آپ نے ساتھ ہی بتا دینا ہے کہ یہ فائل ہے. جی ٹھیک ہے؟ آگے پیچھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں. یہ فرسٹ اینڈ 4 میں آگے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں ضرورت نہیں ہوتی. آپ فیل دیکھیں اس کے اندر ہی فائل ہے، بتا دیں فٹافٹ. ٹھیک ہے؟ جی. تو یہ فائل ہے، اتنی دیر نہیں لگنی چاہیے ریان. اچھا اب بتائیے. الذین. الذين اسم موصول مبني على الياء في محل نصب مفعول به. الذین کیا بن گیا؟ اسم موصول ہے اور مبنی علی الیا ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر سکون آ رہا ہے نا یا پہ، تو مبنی علی الیا ہو گیا. فی محل نصب، کیونکہ یہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول بھی بن رہا ہے. جی تو اس کا اپنا تو کوئی اعراب ہوتا نہیں نا مبنی کا. تو ہم جب اس کو، یہ مفعول کی جگہ پہ آ رہا ہے نا، یہ فعل ہے یہ فاعل ہے، تو یہ مفعول کی جگہ پہ آ رہا ہے نا. جی تو اس لیے اس کو فی محل نصب کہیں گے اور مفعول بنائیں گے. ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جی. اکیلا مفعول بن جائے گا؟ نہیں، اس کو صلت بھی چاہیے. ہاں صلہ چاہیے، صلے کے ساتھ مل کے بنے گا. تو صلہ کیا پڑھیں؟ اعتدو. اعتدوا سو فعل دو ماض ہے یا والواو دو فاعل. ہے؟ اعتدو ہوگا. اعتدو ہے. اعتدوا. جی ہمیشہ وہ سے پہلے پیش نہیں آتی، آتی ہے ہمیشہ ہی آتی ہے، لیکن کبھی کبھی زبر بھی آتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کا بھی جی. خیال رکھنا چاہیے. اعتدو ہے. اعتدوا فعل ماض والواو فاعل والجملة صلة الموصول. تو یہ صلۃ الموصول بن گیا. اور یہ کیا منکم کیا بنے گا؟
جار و مجرور فی محل نصب حال من الفاعل. ہاں تو فائل کہاں ہے؟ فائل کس فائل سے بن رہا ہے یہ حال؟ معرفہ کے بعد جار مجرور آئے تو حال بنتا ہے نا. تو جی سو واو ضمیر کا. واو ضمیر سے یہ حال بن رہا ہے. معرفہ کے بعد جار مجرور آئے یہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے، فائل ہے یہ، مرفوع بھی ہے اور معرفہ بھی ہے. ضمیر جو ہوتی ہے معرفہ ہوتی ہے. تو اس سے یہ کیا بن رہا ہے؟ جار مجرور حال بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر پیچھے نکرہ ہو اور پھر جار مجرور آئے تو پھر وہ اس کی صفت بنتا ہے. نکرہ آ جائے پیچھے، نکرہ آ جائے پھر جار مجرور آئے تو وہ اس نکرہ کی صفت بنتا ہے. معرفہ کے بعد جار مجرور آئے تو حال بنتا ہے. تو یہاں پہ آپ نے حال بنا دیا فی محل نصب، اور فائل ذوالحال. ذوالحال یہ فائل ہے. ٹھیک ہے. اب بتائیں پھر سبتی کیا بن رہا ہے؟ پھر سبتی جار و مجرور متعلق بابتدا. ابتدا ماضی ہے. ابتدا مضارع کیا بنے گا ابتدا سے؟ ابتدا یا تدو. ابتدا یا ہے نا، یہ یا پہ زبر آتی ہے نا ماضی میں. ابتدا یا اور یا تدی، یا تدیو. یا تدیو تا بھی آئے گا. ٹھیک ہے. اور باب کون سا ہے یہ؟ یا تدیو. افتعلا. ہاں افتعلا یفتعل. یہ افتعلا پہ بن رہا ہے نا. یہ روٹ ورڈ کیا ہے؟ روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین تا. عین دال یا. عین دال یا. عین دال یا نہیں ہوتا. عین دال واو ہے. او عین دال وا. ہاں. اب جب فورتھ پلیس پہ ففتھ پلیس پہ آ جاتی ہے واو تو وہ یا بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ نے اس کو بنایا نا عین دال واو سے روٹ ورڈ لے کے ادب سے، تو اب یہ کیا بنے گا؟ ابتدا وا بنے گا نا بیان. جی ابتدا وا بنے گا نا، یا تو نہیں بنے گا نا. ابتدا وا. جی ہاں. اب دیکھو یہ کون سی پلیس پہ جگہ آ رہی ہے؟ ففتھ پلیس پہ آ رہی ہے نا واو. جی. تو ففتھ پلیس پہ آ جائے، 1 2 3 4 ففتھ پلیس پہ آ رہی ہے تو وہ یا میں چینج ہو جاتی ہے. تو ابتدا وا نہیں بولیں گے بلکہ ابتدا یا بولیں گے. اور یہاں پر پھر وہ یا جو ہے موجود ہے ادھر، ابھی تک وہ واپس نہیں آئی. یا تدی یو بن گئی، کیونکہ یہاں پہ بھی دیکھیں ففتھ پلیس پہ ہی آ رہی ہے نا. تو اگر لگاؤ گے بھی تو وہ یا بن جائے گی پھر. جی. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں. روٹ جی ورڈ عین دال واو ہے، اور یہ تا کون سی ہے؟ یہ باب افتعال کی ہے، تا ہے نا. تو یہ کیا بن گیا؟ یا تدی یو بن گیا. اب جب جمع کا صیغہ بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ جمع کا صیغہ اس کا جب بنائیں گے تو وہ نون لگائیں گے. یعتدون. یعتدون. یہتدی یونا بنے گا. یا پہ پیش ہے نا، آگے وہ نون لگائیں گے جی تو یعتدیون. ہاں یا یعتدیون. تدیون بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہے آپ کا؟ 2 حرف علت آگے نا، ایک یہ حرف علت ہے اور ایک آگے اصل. یا تدی یونا وہ بھی آ رہا ہے نا، تو یہ آپ کا یوں جی بن جائے گا. ٹھیک ہے. یا تدی یونا مضارع ہے، یہاں پہ پیش آ رہی ہے نا، یہ مضارع کی وجہ سے پیش آ رہی ہے، ماضی میں نہیں آ رہی. ابتدا یا تدی یونا. اب کیا کرتے ہیں؟ 2 حرف علت آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیا کریں گے ہم؟ کس کو گرائیں گے؟ وہ اس کو گرا دیں گے یا اس کو گرا دیں گے؟ یا کو گرا دے گا. سو جو یعتدون. یا. جی جو ویک ہوتا ہے نا، یہ ویک نہیں ہے، یہ تو پروناؤن ہے نا، یہ تو جمع کے جی لیے ہے نا. جی. یہ جی تو فائل ہے نا. یا تدیون یہ تو فائل ہے، فائل کو تھوڑی گرا سکتے ہیں فعل میں سے. جی. ٹھیک ہے. سو یا ہم کو یا کی یا کو گرا دیں گے. ٹھیک ہے. جی جی. یہ گر جائے گی. ٹھیک ہے. تو یا تدی یا تا. اب یہاں سے اس کو کس میں چینج کریں گے؟
वो को पीछे जेर आ रही है तो या में चेंज करेंगे ना, जी तो ये इस तरह बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका जो आया सीगा वो आया है एतदऊ। ये कौन सा फेल है, माजी है, कौन सा फेल है, माजी है ये, एतदू है ये। जी एतदू कौन सा सीगा बनेगा, माजी के अंदर कौन सा सीगा एतदू बनेगा, कौन बताएगा पहले मुझे, ये तो फर्स्ट वाला है ना, जी तो ये वाला कौन सा है, माजी के अंदर ये वाला सीगा कहाँ पे आता है, कफरा, कफरा कफरा रा और रू, माजी में कहाँ आता है, थर्ड नंबर पे, ठीक है। तो ये फेल माजी है, इसमें वो फाइल है, तो ये एतदू है, एतदा या, और फिर वो अलिफ लगाया तो क्या बन गया, वो से पहले पेश लगा देंगे, एतदू बन जाएगा, सही है। ये जी एतदा है ना, जब इसके आगे हम वो अलिफ लगाएंगे तो ये या गिर जाएगी, पीछे क्या रह जाएगा, वो अलिफ रह जाएगा, वो अलिफ ऐड हो जाएगा, एतदा, वो से पहले पेश कर देंगे तो एतदू हो जाएगा। तो बहरहाल ये मैं फिर जब आपको ज्यादा इसमें डिटेल है थोड़ी, फिर मैं आपको सब बताऊंगी सही करके ना किसी दिन, कि यहाँ पर कैसे ये आया है, मुजारे क्या बनेगा, माजी अम्र कैसे बनेगा। तो बहरहाल ये इसका रूट वर्ड जो है ना, ऐन दाल वो है, और फोर्थ प्लेस पे ये जब आता है तो या में चेंज हो जाता है वो। ये दो बातें तो याद रख लेना। फिर ये हाल बन गया, और फिर सत्ती जो है ये इसका एतद, अब यहाँ पे देखे ना, ये मादी का पहला सीगा है तो या नजर आ रही है, ये जमा का सीगा है तो इसमें ये या गिर गई है, वो वाले ऐड हो गया, ठीक है। तो ये या गिरा जी के वो वाले ऐड किए। वल जुमला तू, हाँ, ये वलकद अलिम तुम, जवाबुल कसमी अल मुकद्दर ला महल ला। ला महल लहा। तो यहाँ से ये पूरा आगे डैश डैश डाल दिया ना, तो जैसे यहाँ से लेके तो पूरा जुमला, वलकद अलिम तुम से लेके यहाँ से ये पूरा जुमला, ये मौसूल और ये सिला मिलके तो अलीमा का क्या बन गया, मफूल बन गया ना, जी और ये हाल बन गया, तो ये पूरा एक ही जुमला बन गया ना, जवाब कसम, जी ये पूरा जवाब कसम बन गया। और कसम जो है वो मुकद्दर है, जो मुकद्दर कसम है ये मुरक्कब तौसीफी बन रहे हैं, अल कसमी अल मुकद्दरी, जवाबुल कसमिल मुकद्दरी ला मलला। तो पूरा जुमला वलाकत से लेके पूरा आगे तक ये जवाब कसम बन गया, किसका, जो कसम मुकद्दर थी। कसम मुकद्दर क्या थी, लाम से पहले, जी लक़द से पहले कसम मुकद्दर थी, और वो थी उक्सिमु, ठीक है ना, ये कसम मुकद्दर थी वहां पे, और लक़द से लेके ये कसम हो गई। और कसम खाने वाला कौन है, इसके अंदर जमीर है ना, जी ठीक है, अना जमीर इसके अंदर वो उसका फाइल है, ठीक है, कसम खाने वाला है, और ये क्या है, जिस बात पे कसम खाई गई है वो है, ठीक है। जी तो जी ये जवाब कसम बन गया। अब आगे चलें, फकुलना, अब कुलना आ गया तो क्या होगा इसमें, जब कुलना आता है तो क्या होता है, क्या चीज जरूर आती है आगे, काला फेल जब आता है तो क्या चीज जरूर आती है, हम मकूल القول। मकूल और कौल लाजिम आता है जब काला फेल आता है तो, ठीक है। जी और जी वो क्या बनता है मकूल और कौल, हाँ मकूल कौल पूरा लहुम से खासीन। उसको छोड़ दो, बनता क्या है, मकूल और कौल का दूसरा नाम क्या है, जुमले में क्या बनता है, काला का क्या बनता है, मकूल कौल, मफूल मफूल। मफूल बनता है, इतनी आसान सी बात है। तो जब भी काला या कुलना को कोई भी सीगा आएगा तो हम चार बातें देखेंगे,
4 बातें। जी एक तो काला फेल है, उसका कोई भी सीगा आ जाए, उसका फाइल ढूंढना है, चाहे अंदर है चाहे बाहर है चाहे साथ लगा हुआ है। जी। अब ये फेल माजी है, कौन सा फेल है ये? फिल माजी। माजी है, तो माजी में क्या होता है? या तो फर्स्ट एंड फोर्थ सीगे में क्या होता है? फाइल। फाइल किधर होता है फर्स्ट एंड फोर्थ में? बाहर बाहर भी होता है और अंदर भी होता है। और अंदर भी होता है। जी। अंदर बाहर क्यों नहीं बोल सकते तुम लोग? अंदर। दिन जी। में कितनी दफा घर से अंदर बाहर होते हो? फाइल अंदर भी होता है और बाहर भी होता अंदर है। होता है। जी या अंदर होता है या बाहर। तो आप जो हो, या तो घर के अंदर होगे या घर के बाहर होगे ना। जी। दोनों जगह तो आप नहीं हो सकते ना। नहीं। नहीं। तो फाइल भी जो होता है, या वो बाहर होगा और या वो अंदर होगा। और ये जी। कौन से सीगों में होगा माजी के? कौन से वाले सीगे, कौन से नंबर के सीगे हैं उनके अंदर ये अंदर बाहर होगा? 1 और 4। फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है। जी। एनी एग्जांपल फर्स्ट एंड फोर्थ की? जी लाइक इसी से बना लो ना। जी। सो फर्स्ट, फर्स्ट क्या बनेगा? काला काला काला। और फोर्थ क्या बनेगा? कालक। हाँ, कालक बनेगा। ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, पीछे कितने बच गए? ये 2 निकल गए पीछे, 14 में से कितने बच गए? 12 12। अब 12 में फाइल किधर होगा? अंदर। अंदर बाहर तो ये थे ना 2। जी सिर्फ अंदर लाइक। नहीं, ये क्या है? ये भला बताएं ना, जो है ये क्या है? लाइक जमीर। नहीं, जी हाँ ये जमीर फाइल है अटैच। ना, फाइल नहीं है ये। जी फाइल ही है ना जमीर, है ना? जी। जी तो ये फाइल ये किधर है? अंदर है बाहर है, किधर है ये? अंदर बाहर तो अटैच। ये वाली है ना। अंदर बाहर तो ये वाली है ना। जी ये वाली क्या है? अटैच। हाँ, अटैच है, यानी साथ लगी हुई है ना। जी साथ लगी है। आपको अंदर भी देखने की जरूरत नहीं है, बाहर भी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कहाँ देखने की जरूरत है? साथ देखने की जरूरत है कि उसको साथ लगी हुई है कि नहीं। ठीक है। अब ये कौन सा सीगा है? कूनू जो है ये कौन सा सीगा है? माजी का है ना। काना काना। ठीक है, कूनू जो भी है। अब जी इसमें भी देखें, अगर ये 12 सीगे में से है, 12 में से है, तो साथ ही लगी हुई है। जी। हाँ। अब देखें, अब यहाँ पे ये जो है, ये पहला और चौथा सीगा तो नहीं है ना, ये वाला। फकुल ना कौन सा सीगा है? कौन से नंबर का सीगा है ये? 12 में से 12 में से तो है, लेकिन है कौन से नंबर का? 14 नंबर का, लास्ट वाला जाके। जी 14। अगर माजी की गिरदान करें तो फकुल ना कहाँ आता है? कुल ना। माजी की लास्ट गिरदान। वन। हाँ, माजी की गिरदान करें जरा। सो काला काल। आप लाम को लंबा क्यों करते हो रेहान? ये इसको आप लंबा क्यों करते हो, मुझे ये बताओ। इसमें और इसमें कोई फर्क है कि नहीं है? फर्क है ना। आप इसको ये वाला पढ़ देते हो। जी इसको शॉर्ट करो, इसको लंबा करो। ये सेकंड वाला है, ये फर्स्ट वाला है। और थर्ड वाला कौन सा है? कालू। कालू। जी ठीक है। और फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ वाला आप काल कालत। फिर कालत। काल। बस इतने ही रहने दो अभी। ठीक है। कालत ये फर्स्ट हो गया, ये फोर्थ हो गया। ये जब भी 2 सीगे आएंगे, चाहे काला फेल हो चाहे कोई भी फेल हो, कोई भी फेल हो। ठीक है। तो पहला और चौथा सीगा जब भी आएंगे तो फाइल को तुम्हें बाहर भी देखना पड़ेगा।
अगर बाहिर ना हुआ तो फिर अंदर वाली जमीर को फाइल बनाओगे। इसमें भी ऐसे ही होगा, काला मूसा और कालत मरियम, ठीक है। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होगा, ये सेकंड सीगा है ना, है जी ना, और ये कौन थर्ड वाला है, थर्ड। जी तो ये 12 में से हो गए ना, जी ये वाले 12 में से हो गए ना। जी 1/4 को निकाल दो तो पीछे 12 रह गए, तो 12 से में से काला भी आ रहा है और कालू भी आ रहा है। अब इनका फाइल किधर ही है, साथ ही लगा हुआ है, ना अंदर जी है ना बाहर है, जी साथ लगा हुआ है, अटैच है। जी समझ आइए। जी इसी तरह बाकी सीगे भी हैं। जी कुलना, अब कुलना 12 में से है, 2 में से है, 12 में से 12 में से। फाइल किधर है इसका, अटैच्ड साथ है, कहाँ है, कहाँ है बताए ना। वो नाज़मीर। हाँ, ना जमीर है। इसी तरह आपका कुल ना था, ये कौन से नंबर का सीगा है, 6। 6 नंबर का सीगा है। और ये ना जमीर वाला कौन सा है, 14 नंबर का सीगा है, लास्ट वाला जाके। जी काला, काला, कालू, कालत, उसके बाद काला ता, और फिर कौलता कुल ना और छठा हो गया, है ना। जी जी काला ता में क्या होता है, सिर्फ अलिफ लगाते हैं और यहाँ पे जबर कर देते हैं, काला ता हो जाता है। अब ये भी 12 में से है ना, पहले ये जी कालत था, चौथा था, अब ये पांचवा हो गया है ना, फिफ्थ वाला हो गया। तो फिफ्थ वाले में जमीर किधर होगी, फोर्थ वाले में तो वो अंदर थी ना, बाहर भी हो सकता था फाइल, ठीक है। फाइल और जमीर एक ही चीज होती है ना, जी जमीर ही फाइल बनती है ना। तो अब इसमें मुझे बताएं कि इसका फाइल तरह काला था का, साथ ही है वो ताज़मीर। वो तो मुन्नस की अलामत है ना, वो तो मुन्नस की अलामत होती है, वो जमीर नहीं है। ता पे सुकून आए ना, ये जो अलिफ है ना, ये आपका फाइल है, ये जी सो अलिफ। अलिफ फाइल होता है, फालता। फिर आगे कुलना आ गया छठा, है ना। जी फिर कुलता आ गया, कुलता में भी फाइल साथ ही लगा हुआ है, कुलतुमा में भी साथ ही लगा हुआ है, ठीक है, तुमा। फिर आगे कुलतों में भी साथ ही लगा हुआ है, सिर्फ 2 सीगों में अंदर बाहर, बाकी 12 सीगों में आपका किधर होता है, साथ लगा होता है। तो जब 12 सीगों में से सीगा आए तो फिर आप फौरन बता दें, अच्छा भाई इसका ये फाइल है, देर नहीं लगनी चाहिए। अब ये 12 में से था ना, जी ये 12 में से है ना, काला और कालत में से तो नहीं है ना ये वाला। नहीं। तो फिर 12 में से हुआ तो 12 में फिर फाइल साथ ही लगा होता है, अटैच ही होता है, तो ये क्या हुआ, ना जमीर क्या बन गई, फाइल बन गई। फाइल। जी अच्छा, तो ये आपका यही कह रहे हैं ना कि ना जमीर क्या है, फाइल है। फाइल सी में। और साथ ही अटैच है, आपको अंदर भी देखने की जरूरत नहीं है, बाहर भी देखने की जरूरत नहीं है, उसको बता दें, फौरन बता दें। लहुम क्या है, जार मजरूर मुतल्लिक बी ही काला, ये मुतल्लिक बन जाएगा। आगे पढ़े कूनू, ये कूनू है, कानू नहीं है, कूनू है। कानू और कूनू में क्या फर्क है, काना वो फेल माजी है और कूनू फेल अमर है। अमर है। कानू जो है वो काना से बना हुआ है, काना, कानू, वो पहले माजी है। और ये उसका यकूनूना से बना हुआ है, तकूनूना से बना हुआ है ये, कूनू। तकूनूना क्या होता है, तकूनूना, है ना। तकूनू होता है लेकिन ये जमा का सीगा है ना, तकूनूना हो गया, ठीक है। अब जब इसमें हम बनाएंगे अमर तो कैसे बनेगा, पहले अमर बनाए हैं। तो ता को मिट कर देंगे हाँ, और और नून को नून पे सुकून डाल देंगे। सुकून डाल दे, नून को गिरा देंगे, गिरा देंगे और अलिफ में चेंज कर देंगे। अलिफ लगा देंगे, तो ये कूनू नहीं बन गया आपका। जी यहाँ आपको नून नजर आ रहा है कोई, नहीं।
مجزوم کرنا ہو نا مضارع کو تو نون گراتے ہیں، جی نون نہیں رہنے دیتے پھر، ورنہ تو وہ مجزوم ہو گئی نہیں نا، نون کے اوپر سکون ڈال دیں گے تو نون تو ادھر ہی موجود ہے نا، جی تو مجزوم تھوڑی ہوگا، نون ہے ہی دمہ، نون خود اٹ سیلف وہ دمہ ہے، ٹھیک ہے، دمے کے برابر ہے، آپ نے سکون کیا تب بھی وہ نون تو ادھر ہی ہے نا، وہ دمہ تو ادھر ہی ہے، اس کو تو گرانا ہی پڑے گا، تب مجزوم ہوگا مضارع، سمجھ آ رہی ہے رضوان؟ جی نون کو گراتے ہیں نا، جی ہاں، یقولونا کا تقولونا کا بنائے مضارع، ریحان تقولونا کا بنائے، تو تا امید کر دیں گے اور نون کو گرا دیں گے، سو الف ایڈ کریں گے اور پھر کیا کریں گے، تقولو یہ کیا بن جائے گا، قولو بن جائے گا، قول، جی قولو ہی بنے گا نا، جی تقولونا تھا نا، جی تا امید کی، یہاں اس کو نون کو گرا دیا، الف ایڈ کیا تو قولو بن گیا، جی کالو نہیں بنے گا، کالو کیا ہوتا ہے، کالو اور قولو میں کیا فرق ہے، کالو اور قولو میں کیا فرق ہے، وہ قالوا فعل ماضی ہے اور قولو فعل فعل امر ہے۔ امر ہے، بالکل ایسے ہی کانو فعل ماضی ہے اور کونو کیا ہے، فعل امر ہے، بالکل دونوں سیم سیم تھے، اس لیے میں نے دونوں بنوائے ہیں، ٹھیک ہے، تو نون گرانا ہوتا ہے، نون نہیں گرائیں گے تو وہ نہیں بنے گا، مجزوم نہیں ہوگا، منصوب کرنا ہو تب بھی نون گراتے ہیں، مجزوم کرنا ہو تب بھی نون گراتے ہیں، فعل امر میں مجزوم کرتے ہیں، آخر سے نون کو گرا دیتے ہیں، دیکھیں اب آپ مجھے بتائیں کہ یدربو کا تدربو، اس کا امر بنائیں، تدربو اس کا امر بنائیں، سو تا امید کر دیں گے، با پہ سکون ڈال دیں گے، ہاں یہاں پہ سکون ڈالیں گے کیونکہ یہاں پہ نون آ نہیں رہا، ٹھیک ہے، جی نون پہ سکون نہیں ڈالیں گے، ریان میں ایک بار بار نہیں بتا سکتی ایک چیز، جی ٹھیک ہے، اگر پیش ہوگی تو اس کو ہٹا کے سکون ڈالیں گے، نون ہوگا تو اس کو پورے کو ہٹا دیں گے کہ نون از اکول ٹو دما، نون از جی اکول ٹو پیش، تو نون پورے کو گرا دیں گے، یہاں بھی ہم نے پیش گرا دی نا، پیش کو گرا کے سکون لگایا نا، تو وہاں بھی نون کو گرا دیں گے تب وہ مجزوم ہوگا، تو تدریبو اب کیا ہوگا، اگلا سٹیپ کیا ہے، الف ڈال دیں گے پیچھے، سو ہاں ادر ادرب حرکت بن جائے گا، ادھر ادرب، ویسے ہی بن جائے گا، یہ تو الف لگایا نا آپ نے، جی، تو اور ادھر کیسے بن، مڈل لیٹر پہ دیکھیں گے اور اس پہ زیر کیا ہے، سو ہاں اس پہ زیر ہے تو ہم کیا لگائیں گے، زیر زیر، اگر زبر ہوتا پھر کیا لگاتے، زبر پیش، نہیں، رضوان کیا لگاتے اگر زبر ہوتا تو، اگر یہاں پہ زبر ہوتا زیر نہ ہوتا تو پھر کیا لگاتے یہاں پہ، مڈل لیٹر پہ زبر ہوتا یا زیر ہوتا تو ہم دونوں دفعہ زیر ہی لگاتے، پیش کب لگاتے ہیں رضوان، اور صرف ون پیش ہے، مڈل ہاں لیٹر جب پیش ہوتا ہے تب پیش لگاتے ہیں، اگر تین ہی حرکات ہوتی ہیں نا مڈل لیٹر پہ، جی ہم؟ جی تو اگر زبر ہوگا تو بھی زیر لگائیں گے، جیسے باپ سامیہ سے کیا ہے، علیما یا لمو ہے نا، تالمو، ٹھیک ہے، اب تالمو سے آپ بنائیں، امر بنائیں، تعلمو، سو تا یہ گرا دیا، کر اس دیں، کو جی سکون دے سکون، دیا، الف لگایا، اب پڑھا اور نہیں اس پہ جا رہا نا، پڑھا نہیں جا رہا نا، جی تو اس کو ہم حرکت دیں گے نا، جی حرکت دیں گے تو کون سی دیں گے، زیر، زیر کیوں دیں گے، بیکاز لام اور مڈل لیٹر پہ زبر آ رہی ہے، ہاں تو زبر آ رہی ہو یا زیر آ رہی ہو آپ نے زیر ہی لگانی ہے، یہ نہیں کہ زبر آ رہی ہے تو آپ نے زبر لگا دینی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، زبر آئے یا زیر آئے آپ نے زیر ہی لگانی ہے، ٹھیک ہے، جی پیش
अब जैसे अभी है नसर यनसुरु है तनसुरु, अब इसका अमर बनाना है हमने, तनसुरु। अब इससे बनाए, ये ता को गिराया, कमिट कर देंगे जी। इसको सुकून और दिया। अब क्या करेंगे, अलिफ लगाएंगे। जी, और मिडिल लेटर पे पेश आ रही है, सो पेश हाँ, डाल देंगे। तनसुरु, मिडिल लेटर है कौन सा, नून स्वाद रा, ये स्वाद। मिडिल लेटर है, इस पे पेश है। ठीक है, तो पेश आ रही है तो फिर आप यहाँ पेश लगाएंगे। बार बार एक एक चीज को रिपीट करेंगे तो कितना टाइम जाया होगा ना, सुनने वाले भी बोर हो जाते हैं फिर। समझ आइए, वो भी जी कहते हैं यार ये इनको समझ ही नहीं आ रही, कितनी बार तो बता चुकी हैं। समझ आई आपको? जी हाँ, तो ये फेले अम्र है, और कानून जो होता है वो फेले माजी होता है। इसी तरह कूलू जो है फेले अम्र होता है, और कालू जो होता है वो फेले माजी होता है। माइक पे आया करो, घबराया नहीं करो और बोला करो। तो यहाँ पर काला का क्या हो गया, ये फाइल हो गया, और किसको कहा जा रहा है वो लाम के साथ आता है। मैंने बताया था ना, काला जब भी आएगा 4 बातें याद रखनी है, एक तो फेल होगा, एक उसका फाइल होगा, एक किससे बात की जा रही है वो लाम के साथ आएगा। ठीक है, जी तो ये जी आपका क्या बन गया, लहोम। लाम की वजह से अब ये मफूल तो नहीं बनेगा ना, क्या बनेगा जब लाम आ गया, वैसे तो ये मफूल है ना, जी। लेकिन बट काला के साथ हमेशा ली आता है, ठीक है, या ला आता है। ला जी जमीर आए तो ला आता है, इसम आए तो ली आता है। ठीक है, वो ली ला बना हुआ है यहाँ पे। तो क्या है, ये आपका लहोम हो गया। मुतालिक। तो यह मुतालिक बन जाएगा क्योंकि जार मजरूर बन गया है। ये मुतालिक लिखा हुआ है ना, बी जी काला। इतनी तो डिटेल दी हुई है, कभी आप खुद से बुक किताब पढ़ते नहीं ना, मसला ये है। ऊनू, बल्कि आपको तो आगे वाला लेसन याद करके आना चाहिए, जो आगे तो आयत पढ़नी है उसको आप देख के आए, ताकि जल्दी से हो जाए। अब किरादतन क्या बनेगा, कूनू, कूनू जब आया था तो वो तो फेले अमर था ना। तो फेल का जी क्या होता है, एक इसम होता है, काना का एक इसम होता है, और काना की खबर होती है। जी। सो तो काना का इसम क्या है, काना का इसम क्या है, ओ इसकी जमीर वाव वाव जमीर। वाव है, वाव है, क्योंकि ये 12 उसमें से है ना, 12 में से है ना, ये 12 में से है, तो साथ ही जी लगा है, साथ ही लगा हुआ है। ठीक है, अब आप देखें तो ये किरादतन क्या बनेगा, काना की खबर। खबर बन जाएगा। काना की खबर मंसूब होती है, सब मरफू होता है ना। जी खासे इन क्या बनेगा, किरादतन की नात बन जाएगा। ना जी तो ये इसका इराब क्या होगा, ये सिफा बन रही है ना, नात बन रही है ना किरादतन की, तो इसका इराब क्या होगा, ये मौसूफ है, खासी ये मौसूफ है, ये सिफ्त है। तो दोनों का सो मौसूफ का इराब सेम होता है ना, तो ये मंसूब है, तो सो ये वो भी भी क्या है, मंसूब होगा। मंसूब है। ये भी नकरा है, ये भी नकरा है, इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं आ रहा, ये भी नकरा है। तो ये दोनों मिलके, मौसूफ सिफ्त मिलके, तो ये काना का क्या बन जाएंगे, इसम बन जाएंगे। जी ठीक है, और पूरा जुमला काना का इसम और काना की खबर मिलके क्या बन जाएगा, काना का इसम और काना की खबर मिलके यहां से पूरा जुमला क्या बन जाएगा, मकूलुल कौल। जी। ये तो नहीं शामिल होगा ना बीच में, नहीं ये इसका ताल्लुक तो कुलना से है ना, जी उसका उसका मुतालिक बना था ना ये बिकाला का, है ना, इसको इधर नहीं शामिल करना। मकूल कौल वो होता है जो बात की जाती है। ऊनू क्या कहा था, हमने कहा उतर जाओ, क्या हो जाओ, बन जाओ बंदर। ठीक है, जी जलील, जलील बंदर बन जाओ। तो अल्लाह ताला ने तो इतनी सी बात की है ना, तो वही जी मकूल कौल बनेगा ना। जी तो जब भी काला आएगा, कोई भी सीगा आ जाए, उसका एक फाइल होगा, एक उसका जो जिससे बात की जा रही है वो ली के साथ आएगा। कभी कभी ये मिसिंग भी होता है, नहीं भी आता,
सिर्फ इतना अल्लाह ताला कहते हैं फकुल ना कूनू किरदतन, इस तरह भी कह सकते हैं, लेकिन कभी कभी फिर यहाँ पे ये ली के साथ भी आता है आगे। हमेशा नहीं आता, 100% नहीं है ये, लेकिन मोस्टली आता है। तो फिर ये आपका क्या हो जाता है, ये मुतल्लिक बन जाता है ली की वजह से। मफूल जो होता है, असल में ये मफूल था, लेकिन ली की वजह से वो फिर वो बन गए। चलिए ठीक है, ओके, दुआ कर लें। سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته पता है, आपका किसी ने लेक्चर सुना है आज, और उसने मुझे इंडिया से, पता नहीं कौन से एरिया में से इंडिया के, मुझे उसने मैसेज किया, हालांकि वो मेल था। मेल ने मुझे मैसेज किया कि मैंने सुना है लेक्चर और मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है, तो मुझे प्लीज ये किताब दे दें। आप कभी ऐसा शौक रखेंगे कि कोई कनाडा में रहता हो और आप उसको जाके तो इंडिया से मैसेज करें, किसी पता नहीं कौन से इलाके से, और वो फीमेल हो और आप उस मेल हो और उसको मैसेज करें कि मुझे ये वाली बुक चाहिए, अगर आप दे सकें तो। उसको ये भी नहीं पता था कि मेरे पास ये बुक है भी कि नहीं, लेकिन अटेम्प्ट तो की ना उसने। जी तो मैंने उसको क्या कहा, मैंने कहा अपना ईमेल भेजो। उसने ईमेल भेजा और मैंने किताब दे दी। जी तो मेरा क्या गया, मेरा कुछ गया? कुछ नहीं गया। अगर हम किसी के लिए इतना भी नहीं कर सकते तो हमारी जिंदगी में कोई फायदा नहीं। मैं उसको पढ़ा नहीं रही, मैं उसको कुछ नहीं कर रही, किताब दे दी है। जी अब वो कहीं से भी पढ़ ले, हो सकता है वो खुद टीचर हो, अपने स्टूडेंट को पढ़ाए, हो सकता है वो किताब आगे कितने लोगों को शेयर करे। तो इल्म इसी तरह फैलता है ना। अब एक बंदा वो है जिसने ये किताब लिखी, आपको पता है ये 15 kg 15 kg की बुक है ये, मुझसे उठाई नहीं जाती। जी मुझे कुछ देखना है ना उसमें, तो मुझसे उठाई नहीं जाती। कभी मैं कहती हूँ जल्दी से मैं क्यों ये फाइल खोलूं, लैपटॉप ऑन करूं, मैं जाके बुक ले देती हूँ, हालांकि मेरा हर उस पे है, फोन पे भी है, सब जगह है, जी टैबलेट पे भी है, लेकिन मैं कहती हूँ जल्दी से देख लेती हूँ है। जी क्योंकि सूरा ढूंढना, फिर उसमें आयत ढूंढना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो मैं जी फौरन वो उठाती हूँ, मैं सूरा का नेम देखती हूँ, मैं देख लेती हूँ, लेकिन मुझसे वो बुक नहीं उठाई जाती। वो किसी ने लिखी है, फिर किसी ने वो छापी है, प्रिंट की है, और एक एक जेर और जबर और एक एक आयत का कोई, कहीं आपको कमी नजर आती है कि कोई बीच में से लफ्ज लहूम मिस हो गया हो आयत में से, नहीं सूरा का नाम गलत लिखा हो, पेज नंबर गलत लिखा हो? तो ये कोई काम करके दुनिया में चला गया ना। जी जिसने मदीना बुक्स लिखी हैं, आपकी 10 बुक्स मदीना की, वो भी फौत जी हो गए हैं, अभी फौत हुए हैं 2 महीने पहले। लेकिन हम मदीना बुक्स पढ़ रहे हैं ना, पढ़ा जी रही हूँ ना मैं, दुनिया में कोने कोने में पढ़ाई जा रही है, अरबी सीखने वाले सीख रहे हैं, तो उनको जी फायदा हो रहा है ना कब्र में। जी इसको कहते हैं सदका जारिया। सिर्फ आपके बच्चे सदका जारिया नहीं होते, आपके स्टूडेंट भी सदका जारिया होते हैं। समझ आइए। जी अब फरत आशमी है, फौत हो गई, कल उनके स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं आगे, तो वो सब उनके लिए सदका जारिया, उनकी औलाद तो है ही, लेकिन जितनों को उन्होंने पढ़ाया है, जो उन्होंने किताबें बनाई लिखी हैं, जो भी उन्होंने किया है, वो सब उनको कब्र में फायदा देगा। तो सिर्फ इस दुनिया का नहीं सोचना होता कि यहाँ महल बना लें, यहाँ घर बना लें, वो तो जरूरत है, उसको जरूरत तक ही रहने दें। अगर सब लोग ये काम छोड़ दें, अब मेरी पूरी फैमिली में एक मैं हूं जो ये सीखा है और मैं करा रही हूँ, आज तक जितनी भी मेरी जनरेशन आई हैं उनमें, और अब फिर उसके बाद आप सीखने वाले, वो भी आप, आपकी अम्मी और अबू जो हैं उन्होंने आपको पकड़ा बिठाया, है ना। अगर वो आपकी केयर ना करते, अपने आराम का ख्याल रखते, आपको टीचर्स के पास ना छोड़ते, आपने भी कोशिश की, अब जी आप जितनों को सिखाओगे आगे, वो सब आपके लिए बनेंगे सदका जारिया। जी तो मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं मिलता ना, कि मिलता है? मेहनत के बगैर तो पका हुआ खाना भी मुंह में नहीं जाता। आप बोले नहीं, खुद ही मेरे मुंह में आ जाए पानी, खुद ही मेरे मुंह में आ जाए,
نہیں ایسا نہیں جی ہوتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. جی یہ بک جو ہے نا کسی نے لکھی ہے، پھر پرنٹ کی ہے، پھر میں نے بائی کی ہے، کسی نے یہاں پہ کینیڈا میں منگوائی ہے، بیروت اردن سے، جارڈن سے، یہاں پہ کینیڈا میں منگوائی، اتنی بھاری بھاری بکس آرڈر کی، پھر میں نے بائی جی کی، پھر میں نے پڑھی، پھر میں اب پڑھا رہی ہوں. ٹھیک ہے. جی یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس بس ہو گیا تو ہو گیا، نہ پڑھا تو نہ پڑھا، اور یہ میرے پاس بہت ٹائم ہے. مجھے پتا ہے اس وقت میرا یہ نیپ ٹائم ہوتا ہے، مجھے کتنی نیند آ رہی ہوتی ہے لنچ کے بعد، آپ کو نہیں پتا. لیکن آپ کی چھٹیاں ہیں تو میں کہتی ہوں چلو آپ شام کو نہ پڑھو، شام کو کھیل کود لو، دن کو پڑھ لو، میں بعد میں سو جاؤں گی. جی تو یہ مذاق نہیں ہے بیٹا، اٹس اے سیریس تھنگ. اور اس بندے نے کتنی دعائیں دی مجھے، کتنا وہ خوش ہوا کہ مجھے کتاب، اس کو کوئی امید نہیں تھی مجھے کتاب مل جائے گی. میں اس کا جواب ہی نہیں دیتی. آج کل کسی کے بھروسہ تو نہیں کیا جا سکتا نا، کتنا سب کچھ اسکیم چل رہا ہے، اور یہ چل رہا ہے نا، جی آپ کی آئی ڈیز ہیک ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم چھوڑ دیں گے بھروسہ کرنا تو پھر دنیا تو ختم ہو گئی نا. تو کہیں کہیں پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے. جی اسے تو اتنا بھی نہیں بھروسہ تھا کہ میں اس کو جواب بھی دوں گی، کیونکہ کوئی جواب نہیں دیتا. ان نون نمبر کو کوئی جواب دیتا ہے؟ کال ہی نہیں لیتے لوگ. جی لیکن اس نے مجھے کتنی دعائیں دی ہیں، اس کو کتاب ملی ہے، تو آپ کو نہیں پتا. وہ ہمیشہ مشکور رہے گا. تو دنیا میں ابھی اچھے لوگ ہیں. ہر بندہ سیلفش نہیں ہوتا کہ صرف میں مجھے، ایسا نہیں ہوتا. دنیا پھر نہیں چلتی. دنیا ہے گیو اینڈ ٹیک کا نام، گیو اینڈ ٹیک. آپ صرف بولیں کہ ٹیک 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 ٹیک، ایسا نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ آپ کو بھی سیکریفائی کرنا پڑے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے نئے علم کے لیے، تو آپ کو ایٹ لیسٹ بہن بھائیوں کو، اپنے بچوں کو آگے اس رستے پہ رکھنا ہوگا. ان کو عربی سکھانی ہوگی آپ نے، ورنہ آپ سے پوچھو گی میں نے آپ کو چنا تھا، آپ نے کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں پڑھایا آگے. اس کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہوگا. ٹھیک ہے. جی اور یہ فن ہے، فن ہے یہ. میں تو نہ پڑھوں تو میں بیمار ہو جاتی ہوں. میں صبح سویرے 6 بجے کلاس لیتی ہوں، اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ کے. اگر میں نہ لوں تو میں بیمار ہو جاتی ہوں. میرے لیے وہ آکسیجن ہے. مجھے عادت ہو گئی ہے اس کی. جی میں چھٹیوں میں بیمار ہو جاتی ہوں. دن کو آپ کو تو میں ویسے دن کو پڑھا دیتی ہوں یا شام کو پڑھا دیتی ہوں. میری اکثر مین تو وہ ہے فجر کے ٹائم کے بعد. ٹھیک ہے. وہ پوری ورلڈ وائڈ لوگ پڑھتے ہیں. جی چلیں ٹھیک ہے. دعا کر لی آپ نے؟ جی دوبارہ کر لیں. سبحانک اللہم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب ونتوب إليك. إليك. السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا کل کلاس نہیں ہوگی، میں بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. میری اپوائنٹمنٹ ہے جانا. صحیح ہے بیٹا. جی اوکے. اوکے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.